Good morning, my little students. Here Anil Kumar Singh, again your computer teacher, bring a new point which we have already taught in the second last video, which was HTML, where you studied about the HTML, about the creation of the page of HTML and how you can use the CSS, cascading style sheet. Here I am going to teach you the new feature which is called the advanced feature of HTML. Basically, I have told you the web page creation need this language HTML, hypertext markup language, where some codes are available to make a web page. These codes are called tags. There are the tags. In between tags you can write something and make a web page to run on the web browser, and you find the result. Here I am going to tell you what is the advanced feature of HTML which is basically used in your web page. There are so many advanced features in your HTML, but according to your syllabus there are two basic features. First one is list and the second one is table. I will teach you these 2 points in your video, where there are 3 other functions in the list. The first one is ordered list, second one is unordered list, and third one is definition list. If we are talking about these 3 lists which we are going to use in our HTML document, the first one is ordered list, means you will put something in your document page and there are some orders are available like 1, 2, 3, 4, 5, first, second, third, fourth, 5, A, B, C, D, E. This is the order which here followed by the ordered list. Okay. If we are talking about the second function, which is unordered list, means there are not a single order which is available in the list which show you what have the priority and what don't have the priority. Like this is first, this is second, this is fourth, third, this is fourth, this is 5. Yeah, this is first, this is second, this is third, this is fourth, and this is fifth. These are the unordered list, means there are not a single order where the list is started from the upper side or from the lower side. This is the unordered list. And the last one is definition list, where some words told the definition of the whole page. Like HTML means hypertext markup language. Okay, so this is the definition list. I will told you in the PPT session again, but here I will show you the small description of these things. If we are talking about the tables, I will teach you in the PPT session how to create a table, what is the create a table, what is the advantages of the table, and at last what is the attributes in table, attributes used in a table. So I will show you in the PPT session all 3 factors which is related to your table content in advanced feature of HTML. Basically these 2 features only available in your syllabus. That's why I have to teach you only these 2 features in the PPT session. So here we go to the PPT session to know what is these list and what is the table creation in the very big manner. Okay, let's go for the PPT session. So here Anil Kumar Singh again start with the PPT session of the HTML advanced points, which is the chapter number 7 of the class 8. So here we go. We start with the slide session.
Here I am going to tell you what is the advanced feature of the HTML. Basically you have two features which is situated in your books. First one is list and second one is tables. उन्हीं लिस्ट और टेबल्स के बारे में we discuss here. कुछ कोर पॉइंट्स हैं, उनके कुछ प्रोग्राम्स हैं, उनके कुछ रिजल्ट्स भी हैं, मैं आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और यूज़ करने की कोशिश करिएगा और इस गर्मी से बचे रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। ओके, एडवांस फीचर ऑफ HTML। बेसिकली आपकी जो चैप्टर हैं उसमें दो ही ऑप्शन हैं। फर्स्ट वन इज़ लिस्ट एंड सेकेंड वन इज़ टेबल। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिस्ट, देयर आर थ्री लिस्ट। फर्स्ट वन इज़ ऑर्डर लिस्ट, शो हो रहा है आप सभी को। फर्स्ट वन इज़ ऑर्डर लिस्ट, सेकेंड वन इज़ अनऑर्डर लिस्ट एंड थर्ड one is definition list. There 3 lists are there. And if we are talking about the table, we discuss the points, advantages, creation of the table and table properties. Okay, these 6 points are we are going to discuss in this slide session. So start with the first, list. So firstly we have to know what is the list. A list is the most efficient way to presenting the information in the precise manner. It helps in making important points stand out more clearly, thereby the grabbing the attention of website visitor. Exactly. अब आप एक वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, अगर चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ फेसबुक का। You have lost lot of things on Facebook. Okay, click on the settings. सेटिंग को आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्या ओपन होती है, एक लिस्ट ओपन होती है। उस लिस्ट में अगर आपके स्पेसिफिक नाम ना दिए हो तो हाउ यू विल बी चूज़ अ सिंगल ऑप्शन। आपको पूरा पता नहीं कैसे कैसे प्रोग्रामिंग को अगर करके छोड़ दिया जाता तो शायद आप उस ऑप्शन को चूज़ ही नहीं कर पाते। दैट्स वाई लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो यूज़र है, जो उस वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, उसके सामने वो सारे के सारे कोर पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएँ, ठीक है। बेसिकली लिस्ट की बात की है HTML वेब ऑथर 3 ways स्पेसिफाई द लिस्ट इंफॉर्मेशन। ऑल लिस्ट मस्ट कंटेन वन और मोर लिस्ट एलिमेंट्स। लिस्ट में कंटेन, ठीक है, एक लिस्ट में एक आइटम से ज़्यादा, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अरे आप मार्केट जाते हो, ठीक है एक छोटा सा, सभी मार्केट जाते हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई जाती है मार्केट में ताकि हम किसी चीज़ को भूल ना जाएं। अब ऐसा थोड़ा है कि अगर मैंने लिस्ट में लिख दिया टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट को मैं डिस्क्राइब भी करूँगा। टूथपेस्ट हम मार्केट में जाके डिस्क्राइब करते हैं, किसका कलर अच्छा है, किसकी स्मेल अच्छी है, किसका टेस्ट अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग टूथपेस्ट खाते भी हैं, मैंने सुना है। तो जो लोग खाते हैं खाना छोड़ दीजिए, ठीक है, पेस्ट करने के लिए होता है ताकि आपके दांत चमकते रहें। क्लियर? सो जब हम लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बनाते इसलिए बनाई जाती है ताकि हमारे कुछ पॉइंट्स छूट ना जाएँ और उस लिस्ट में जो भी चीज़ हम लिखते हैं उसका डिस्क्रिप्शन हम जाके मार्केट में देखते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ मार्केट के लिए लिस्ट बनाई जाए, बहुत से कामों के लिए। हम घर में कोई फंक्शन करते हैं, यहाँ तक कि मेन्यू कार्ड में भी लिस्ट होती है। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, ऐसे ही आपके जब घर में कोई फंक्शन होता है तो उस खाने में भी कुछ मेन्यूज़ होते हैं कि अगर सत्यनारायण भगवान की कथा है तो सिर्फ हलवा चना मिलेगा, बर्थडे पार्टी है तो पनीर और छोले मिल जाएंगे, शादी है तो सूखी सब्जी रायता मिठाई के साथ बहुत सारी चीज़ें। तो लिस्ट बदलती रहती हैं। लेकिन अगर सिर्फ वहाँ पे लिख दिया जाए फूड, तो फूड में मैं ये नहीं बता सकता कि भाई फूड के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये लिस्ट का फ़ायदा होता है। तो अब हम बात करेंगे 3 लिस्ट की। फर्स्ट वन इज़ ऑर्डर्ड, सेकेंड वन इज़ अनऑर्डर्ड एंड थर्ड वन इज़ डिस्क्रिप्शन। ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट, दिस विल यूज टू डिफरेंट स्कीम ऑफ नंबर टू लिस्ट योर आइटम, ठीक है। ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि आपको पता चल जाएगा स्पेसिफिक मैनर में कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द ऑर्डर। अनऑर्डर मीन्स आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कौन से ऑर्डर पे कौन सी चीज़ रखी हुई है। एन ऑर्डर लिस्ट, दिस विल आइटम यूज़ द प्लेन बुलेट्स, यानी बुलेट्स होगा, स्क्वायर होगा, सर्कल्स होंगे, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे भी दिखाया था। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, किसी की डेफिनेशन बताई जाती है। ऐसी लिस्ट आपने गौर किया होगा, जैसे कि आपके जो चैप्टर्स ओवर हो जाते हैं तो एट लास्ट आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, पॉइंट्स के नीचे ही उसको डिस्क्राइब कर दिया जाता है। जैसे HTML लिखा हुआ है तो HTML को ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मान लो लिखा होता www, तो उसके ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। और भी बहुत सारी हैं, किसी भी चीज़ को डिक्टेट करना हो तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं। चलो आगे हम देखते हैं। सो हेयर द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का फर्स्ट एग्जाम्पल है और ऑर्डर लिस्ट की डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू पुट योर आइटम इन अ नंबर्ड लिस्ट इंस्टेड ऑफ बुलेट, देन HTML ऑर्डर लिस्ट विल बी यूज्ड। ओके, तो HTML का मैंने प्रोग्राम एक छोटा सा यहाँ पे बना के रखा हुआ है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। क्या हुआ है,
सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिखना या ना लिखना, इट्स योर चॉइस। ओके, फर्स्ट वन इज़ HTML हेड सेक्शन के हमने क्या लिखा है, टाइटल लिख दिया है HTML ऑर्डर्ड लिस्ट, ताकि हमें पता चले कि हम प्रोग्राम किस चीज़ का बना रहे हैं। हेड को क्लोज़ किया, बॉडी को स्टार्ट किया। बॉडी के अंदर हमने ये जो OL लिखा है ये है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट। मैं आपको स्ट्रेच करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप इधर आइए भाई साहब, ठीक है। ये जो OL लिखा हुआ है ना, इट इज़ कॉल्ड द ऑर्डर लिस्ट। और ये जो LI है, LI ये आपकी लिस्ट के आइटम्स हैं। क्लियर है? LI आप जब तक नहीं लगाओगे, और आपको हर एक आइटम को LI से ही स्टार्ट करना है, LI से ही क्लोज करना है। आपने देखा होगा हर एक आइटम को LI से ही स्टार्ट किया है, LI से क्लोज भी किया है, ठीक। यानी फर्स्ट लिस्ट आइटम, सेकेंड लिस्ट आइटम, थर्ड लिस्ट आइटम, फोर्थ लिस्ट आइटम। क्लियर है ना? ये फर्स्ट लिस्ट आइटम है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। ओके, चलो इसी को फिर उन्होंने क्या किया है, क्लोज़ कर दिया। OL को क्लोज़ किया है यहाँ पे, ये आपका OL क्लोज़ हो गया, और बॉडी को क्लोज़ कर दिया है। अब OL और बॉडी क्लोज़ हो गए, इसका मतलब बॉडी सेक्शन फिनिश हो गया। और एट लास्ट हमें क्या करना है, HTML को, प्रोग्राम को क्लोज़ करना है, तो वी हैव टू क्लोज़ द HTML टैग ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, HTML को क्लोज़ कर दिया। अब हम इसको रन कराएंगे कहाँ पे, ब्राउज़र पे। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर हमारे प्रोग्राम्स रन नहीं हो रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स बन नहीं रहे हैं। तो बच्चा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप किसी प्रोग्राम को बना रहे हैं, HTML में कोड कर रहे हैं, तो यू हैव टू सेव योर फाइल विद .html। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, आई नो दैट, ओके। और .htm, इन दोनों से आपको अपनी फ़ाइल को सेव करना है। और जैसे ही आप इस फाइल को, अपनी फ़ाइल को HTML या HTML से सेव करोगे, तो आप उसके आइकन को चेक करना। अगर वो आइकन ब्राउज़र में कन्वर्ट हो गया है, इट मीन्स इट इज़ योर HTML फाइल, अदरवाइज इट इज़ नॉट योर HTML फाइल, और वो रन नहीं होगी किसी भी ब्राउज़र पे। क्लियर है? ओके, तो रिज़ल्ट में हम किसी ब्राउज़र पे रन कराते हैं। रिज़ल्ट पे रन आने के बाद क्या होता है, आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पे बीटरूट, सेकंड पे जिंजर, थर्ड पे पोटैटो एंड फोर्थ पे रेडिश। यानी आपको सब्जी लेनी है, मार्केट आपको भेजा जा रहा है, आपकी मम्मी ने आपको लिस्ट दी है, और गलती से भी एक चीज़ भी आप भूल गए तो फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड, यू नो वेरी वेल। और मम्मी अगर ओलंपिक में भाग ले लेती तो गोल्ड मेडल पक्का था, दैट्स वाई डोंट फॉरगेट। सो दीज आर द बीटरूट्स, जिंजर, पोटैटो एंड रेडिश। आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब ऑर्डर सिर्फ 1 2 3 4 का ही नहीं होता है, ऑर्डर कई चीज़ों का होता है। और मैं आपको आगे एट्रीब्यूट्स इसी चीज़ का बताऊंगा कि जो टाइप्स होते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के, जिसे आप टाइप्स कह देते हो, वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको अब शो करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड देखो, टाइप्स और एट्रीब्यूट्स हो दिखाई दे रहे हैं आपको ये। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट दे रखा है डिफ़ॉल्ट के। डिफ़ॉल्ट को इसमें अगर आप कोई भी टाइप को डिग्निफाई नहीं करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आएगा। अगर आप डिग्निफाई करते हैं, OL के अंदर ही आपको टाइप डिग्निफाई करना है, कहीं बाहर नहीं। OL के अंदर अगर आपने फर्स्ट डिग्निफाई किया है, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है अपर केस न्यूमेरल्स, ओके, शो हो रहा है। सेकंड है आपका लोअर केस न्यूमेरल्स, थर्ड केस है आपका अपर केस लेटर, एंड लास्ट केस है लोअर केस लेटर्स। मैं आपको स्ट्रेच करके दिखाता हूँ, तो इधर आओ बाबू। फर्स्ट आपको शो हो रहा है, फर्स्ट आपको शो हो रहा है ये, वेयर इज द पेन, ओके। फर्स्ट आपको शो हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। सेकंड है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड है आपका स्मॉल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ है आपका कैपिटल ABCD, एंड लास्ट है आपका स्मॉल ABCD। क्लियर? ये आपके नंबर्स हैं, इससे पता चलता है कि ऑर्डर किस ऑर्डर में आपको वैल्यूज़ दी गई हैं। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको शो करता हूँ। आप इधर आएँ, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफ़ाइन किया है टाइप इक्वल्स टू 1। इसका मतलब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के रूप में मिलेगा। और हम आपको शो करते हैं, क्योंकि आप पहले देख चुके हैं इसका रिज़ल्ट। पीछे आप लोगों ने अगर देखा होगा तो गौर किया होगा आपने कि पीछे भी मैंने यही प्रोग्राम कराया था, सेम, कोई फ़र्क नहीं था। तो आउटपुट इसका वही आएगा सेम। फर्स्ट पे आपका बीटरूट आ जाएगा, सेकंड पे आपका जिंजर आ जाएगा, थर्ड पे आपका पोटैटो आ जाएगा, एंड फोर्थ पे रेडिश आ जाएगा। आई होप यू ऑल हैव क्लियर दिस पॉइंट। किसी को इतना सा भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी, ओके। नेक्स्ट, अब देखो टाइप यहाँ से चेंज किया है। अब की बार हमने जो टाइप लिया है वो टाइप है फर्स्ट, ओके, दिस इज़ टाइप फर्स्ट।
अब टाइप फर्स्ट किया है तो आउटपुट मेरा सेम आएगा, बस मेरी नंबरिंग बदल जाएगी। नंबरिंग मतलब अब मेरे पास फर्स्ट सेकंड 1 2 3 4 नहीं आएगा, अब मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। शो हो गया? किसी को कोई डाउट? आई थिंक नहीं होना चाहिए। प्रोग्रामिंग बिल्कुल सेम रहेगी, प्रोग्रामिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, गौर से देखिए, सेम प्रोग्राम है। HTML से स्टार्ट किया है, हेड के अंदर मैंने टाइटल दिया है HTML ऑर्डर लिस्ट, टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया है। बॉडी के अंदर मैंने ऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप डिफाइन किया है। ठीक है, ये जो टाइप डिफाइन है ये ऑर्डर लिस्ट के अंदर, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर वो भी बॉडी सेक्शन में, हेड सेक्शन में नहीं, क्योंकि ये आपका हेडिंग नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम की बॉडी है। क्लियर है? तो आउटपुट अगर आप लोग गौर करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में है। अब देखो नेक्स्ट हम प्रोग्राम देखते हैं। अब की बार मैंने स्मॉल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को टाइप में रखा है। देखो आपको आई दिख रहा होगा, लेकिन ये स्मॉल 1 है यानी फर्स्ट है, फिर सेकंड स्मॉल सेकंड आएगा। देखो सेम है आउटपुट में, आपको दे बीटरूट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ गया है। एनी डाउट किसी को? तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पर्सनल टेक्स्ट कर सकता है, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकता है। आई एम अवेलेबल 24/7। ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, स्मॉल ABCD आया है। देखो स्मॉल ए में अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे, आई थिंक शो हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको स्ट्रेच करके अभी दिखा दूंगा कि प्रोग्राम सेम है। इस बार मैंने टाइप चेंज किया है, टाइप में मैंने स्मॉल ए लिया है, फिर से मैंने सेम लिस्ट लिखी है, और आउटपुट में अगर आप गौर करेंगे तो स्मॉल ABCD अब आ गई है, ABCD शो हो रहा है। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अभी तक मुझे नहीं लगता इतनी सिंपल कोडिंग किसी भी चीज़ की नहीं होती, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नहीं होती जितनी सिंपल कोडिंग आपकी HTML की होती है। आपको गर्व होगा कि आप एक HTML कोडर बन सकते हैं 8th क्लास में, इतने ज़्यादा नहीं तो कम से कम छोटे छोटे प्रोग्राम्स तो रन कर ही सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़, आप देखो स्टार्ट लिस्ट में भी एक नया खुलासा यहाँ हुआ है, सनसनीखेज खबर है आपके सामने। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऑर्डर लिस्ट फर्स्ट से ही स्टार्ट हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो स्टार्टिंग फर्स्ट से ही हो सकता है कि वो स्टार्टिंग 5th से हो रही हो सकता है स्टार्टिंग 4th से हो रही हो। तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग की है 4 से। अगर आप लोग गौर करेंगे तो मैंने ऊपर आपको टाइप में डिफाइन भी किया है, फर्स्ट ए में स्टार्ट कहाँ से करना है, 4th से, यानी 4th लेटर से करना है या फिर 4th सेक्शन से करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको टाइप डिफाइन किया है यहाँ पे मैंने टाइप डिफाइन किया है हेड सेक्शन में HTML ऑर्डर लिस्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, और टाइप में मैंने स्मॉल 1 2 3 4, लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया है मैंने, 4th से। दिखाई दे रहा है आप सभी को? स्टार्ट मैंने कहाँ किया है, 4th से। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा, यहाँ पे जो आपको आउटपुट दिख रहा होगा, अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपका आउटपुट 4th से स्टार्ट हुआ है, 4th, 5th, 6th एंड 7th। क्लियर? आई थिंक तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट से ही स्टार्ट करें। आपका ऑर्डर मिडिल ऑर्डर भी हो सकता है, लो ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे क्रिकेट में होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लास्ट जो भी होता है लो ऑर्डर, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। बस आपको उसकी रेंज देनी है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। आई होप एवरी पॉइंट इज़ क्लियर येट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। या अनऑर्डर्ड लिस्ट, अभी तक हम बात कर रहे थे ऑर्डर्ड लिस्ट की, अब हम बात करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट की। अनऑर्डर्ड में क्या होता है, किसी भी चीज़ की, किसी भी पॉइंट का डिसाइडेड नहीं होता कि वो फर्स्ट है कि वो लास्ट है, बस ये है कि हाँ वो है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो थिएटर में जब हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं तो सीट नंबर तो सबको अलॉट होता है, ये पता है। वो एक ऑर्डर लिस्ट का एग्जाम्पल है कि वो फर्स्ट सीट नंबर है, कि वो A सीट नंबर है, कि वो B सीट नंबर है, पर ये नहीं पता होता है कि कौन सा बंदा किस टाइम पे आके वहाँ बैठा है, कि फ़र्स्ट ऑर्डर किसका था, लास्ट ऑर्डर किसका था, टिकट पहले किसने बुक किया था, लास्ट में किसने बुक किया था। ऐसे रेस्टोरेंट में क्या होता है, रेस्टोरेंट में भी सीट डिसाइडेड होती है, फर्स्ट सीट, सेकंड सीट, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, लेकिन कस्टमर डिसाइड नहीं होते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट आपको यही शो करता है कि आपके पास लिस्ट तो है पर उसका कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आई होप बहुत सारे लोगों को खाना बनाना आता होगा, आई होप बहुत सारे लोगों को चाय बनानी आती होगी। 7th वाले स्टूडेंट को मैंने चाय बनवाई भी थी, अगर याद हो तो। ओके, तो
जब हम चाय बनाने जाते हैं तो देयर इज़ अ ऑर्डर एक तरीके का होता है जिसमें हम चाय बनाते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं, सीधे सिलेंडर मार्केट से उठा के लेके आते हैं, फिर सिलेंडर में आग लगा देते हैं। ऐसा कुछ होता है? नहीं, हमारे पास एक स्पेसिफिक सामान है, उससे स्टार्ट करते हैं कि फर्स्टली यू हैव टू कैरी अ फ्राई पैन जिसमें आप चाय बना सको। फिर वाटर लेते हैं और बॉईल करते हैं, फिर अदरक, काली मिर्च और क्या नाम से क्या होता है वो, इलायची, ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। फिर टी लीव्स डालते हैं, फिर शुगर डालते हैं, जिसको शुगर की पीनी होती है, नहीं पीनी है मत पियो, कड़वे लोग हो जाते हैं फिर वो। तो इस तरीके से धीरे धीरे ऑर्डर चलता है। पर ऐसा नहीं, ऐसा वो इसलिए होता है ताकि अगर ऑर्डर में हम वो चीज़ें नहीं रखेंगे तो चाय हमारी अच्छी नहीं बनेगी। अनऑर्डर का क्या होता है कि आप कोई चीज़ बॉईल करने जा रहे हैं, तो बॉईल में ये नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको किसी और चीज़ से स्टार्ट करना है। बॉईल करने के लिए आपने सारा चीज़ इकट्ठे डाल दी, सब कुछ इकट्ठे डाल दिया और उसको बॉईल करने लगे। अब ये कौन बताएगा कि बॉईल करने के लिए जो जो चीज़ें इसमें डाली गई हैं, इसमें फर्स्ट किसका ऑर्डर था, लास्ट किसका ऑर्डर था। जैसे आजकल क्या है, गिलोय का काढ़ा लोग पीते हैं, गिलोय के काढ़े में बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, तो उसमें हम ऑर्डर नहीं लिखते हैं कि पहली बार में मुझे काली मिर्ची डालनी है। काली मिर्च, लौंग, इलायची जो भी है वो सब इकट्ठे पड़ता रहता है, तो वो अनऑर्डर कहलाता है। यहाँ हम लोग वही अनऑर्डर लिस्ट की बात करेंगे जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं आएगा। अब बुलेट्स आएंगे, स्क्वायर्स आएंगे, सर्कल्स आएंगे। उसी के मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। पहला एग्जांपल है, नीचे देखो, अगर एक पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम दैट हैव नो स्पेशल ऑर्डर और सीक्वेंस। दिस लिस्ट क्रिएटेड बाय द HTML UL। UL का मतलब ही होता है, जैसे ऑर्डर लिस्ट में OL होता है वैसे अनऑर्डर लिस्ट में UL होता है। ईच आइटम ऑफ द लिस्ट इज़ मार्क विद द बुलेट। ओके, बुलेट से बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ रिजल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, तो उसमें बुलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है। तो ये सेम प्रोग्राम है, कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क है आपके OL और UL का। ऑर्डर लिस्ट में यहाँ OL होता था, अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ UL है, UL कोड कर दिया। लिस्ट के लिए सारे प्रोग्रामिंग सेम है। अगर आप गौर करेंगे इसमें भी लिस्ट बन रही है तो LI स्टार्ट भी होगा और LI क्लोज भी होगा। एट लास्ट UL को क्लोज़ किया, एट लास्ट बॉडी को क्लोज़ किया और एट लास्ट HTML को हमने क्लोज़ कर दिया। अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट। दिस इज़ योर रिजल्ट। स्टार्टिंग में देखो, दिस इज़ योर रिजल्ट। अब इस रिज़ल्ट की हम लोग बात करें तो बीट रूट, जिंजर, पोटैटो और रेडिश। कोई ऑर्डर है इसका कि पहले कौन सा लिखा गया होगा या पहले कौन सा लेना है, बाद में कौन सा लेना है? कोई ऑर्डर नहीं है। बुलेट्स में हम बता ही नहीं सकते कि कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, या कौन सा फर्स्ट आया है, कौन सा लास्ट आया। दिस इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, अब इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करें तो जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे एट्रीब्यूट्स थे 1 2 3 4 ABCD, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे क्या होते हैं? स्क्वायर्स, डिस्क और सर्किल। ठीक है, डिस्क हम लोग यहाँ देख ही रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड द डिस्क। ठीक है, डिस्क का मतलब ये सर्किल नहीं, ये जो आगे पॉइंट दिखाई दे रहा है, इट इज़ कॉल्ड द डिस्क। ये आपके डिस्क हैं यहाँ तक, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है। अब बाकी के यूज़ भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हम लोग स्टाइलिश हैं, चेंज करना हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम चेंज कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या यूज़ कर रहे हैं? टाइप स्क्वायर। कोई प्रोग्राम में चेंजिंग नहीं है। HTML ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, UL पे सारे स्क्वायर। हमने क्या सिर्फ टाइप चेंज कर दिया है, यहाँ पे टाइप हमने दे दिया है क्या? स्क्वायर। और जैसे ही हमने टाइप स्क्वायर दिया, लिस्ट हमने पूरी बना दी, एज इट इज़ लिस्ट को हमने प्रिंट कराया है। तो अब क्या हुआ, उस डिस्क की जगह यहाँ पे अब स्क्वायर्स आ गए और कोई चीज़ नहीं है। तो दिस इज़ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द अनऑर्डर लिस्ट। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्डर लिस्ट, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ABCD, 1 2 3 4, these are the attributes of the order list. But if we are talking about the unordered list attribute, so disk, square and circle, these are the attributes of the unordered list. Okay, let's go for the next example. This time we have to take the circle. This is the last example of the unordered list. Type circle. अब जैसे ही आपने यहाँ पे सर्किल लिया, अब आप गौर करेंगे, और जी आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप ऊपर आओ, यहाँ पे रिज़ल्ट में आपको सर्कल्स दिखाई देने लगेंगे। तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स, दीज आर द एट्रीब्यूट। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। क्लियर है? अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो अब देखो एट्रीब्यूट्स का लाइव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये जो सर्किल लिखा हुआ है दिस इज़ एट्रीब्यूट।
अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। So the last one is definition list. Definition list means to define a single word with a definition in a list is called the definition list. अगर हम इसमें पढ़ें HTML and the XHTML ये एक्सटेंडेबल होती है, एक्सटेंसिबल बोला जाता है इसे एक्चुअली, ठीक है। जैसे कि आजकल आपको .docx के साथ x जुड़ा हुआ होता है, उस x का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिबल फाइल। तो ऐसे ही XHTML का मतलब भी होता है एक्सटेंसिबल HTML। Supports a list or style which is called the definition list where the entire entries are listed like a dictionary or encyclopedia। बिल्कुल आपने डिक्शनरी या इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा होगा। इंसाइक्लोपीडिया को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, डिक्शनरी को पढ़ा होगा। डिक्शनरी में क्या होता है, आप किसी वर्ड को अगर ढूंढ रहे होते हो तो क्या होता है, एक वर्ड मिलता है डार्क ब्लैक कलर में और उस डार्क ब्लैक कलर के बाद उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द डेफिनेशन लिस्ट। वो है आपकी डेफिनेशन लिस्ट का बेस्ट एग्जांपल। ऐसे ही आपने अगर देखा होगा टेलीफोन डायरेक्टरी, ठीक है, डिक्शनरी को छोड़ दो, टेलीफोन डायरेक्टरी। तो टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता है, फ़ोन नंबर लिखा होता है, फ़ोन नंबर के सामने उसका एड्रेस लिखा होता है, पूरा नाम, एड्रेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो दिस इज़ योर डेफिनेशन लिस्ट। उन्हीं डेफिनेशन लिस्ट को बनाने के लिए HTML पे कोड किया जाता है। डेफिनेशन लिस्ट के लिए क्या ज़रूरत है, DL, जहाँ पे डिफ़ाइन किया जाता है। DT एक टर्म है और आप DL को क्लोज करेंगे, DD भी टर्म डिफ़ाइन करती है। तो इन सब का इस्तेमाल, ये जो चारों आपको टर्म दिए हैं, ये चारों जो आपको टैग्स दिए हैं, एक्चुअली दीज आर द टैग्स। तो दीज टैग्स इज़ यूज्ड इन, दीज टैग्स आर यूज्ड इन HTML कोड। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज़ योर एग्जाम्पल। अगर आप लोग गौर करेंगे, थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर देता हूँ इसे, पहले कोड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले HTML की बात होगी, HTML देन हेड देन टाइटल, ओके। HTML हेड देन टाइटल, टाइटल में HTML डेफिनेशन लिस्ट की बात की गई है, हेड। अब हेड तक फिनिश हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं बॉडी। ये आपका एक तरीके से कॉमन फैक्टर है जो हर प्रोग्राम में यूज़ होता है। तो ये तो आप चाहो तो रट लो। आपके हेडिंग बस बीच में जो ये लिखे हुए हैं ना, ये बदलते जाएंगे, इसके अंदर की डिस्क्रिप्शन बदल दी जाएगी, आप इसमें स्टाइल लगा सकते हैं, आप इसमें कलर लगा सकते हैं, पर हेड सेक्शन हमेशा ऐसे ही चलता है, ओके। अब हम बॉडी की बात करें तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में DL से स्टार्ट किया, DT और बोल्ड हमने क्या लिखा है, HTML। सबसे पहले तो हमने इसे डिफ़ाइन किया है, फर्स्ट टर्म DT। DT का मतलब है कि इसको हमें डिफ़ाइन करना है, ठीक है। डिस्क्राइब, वो क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब टर्म बोला जाता है, ठीक। तो इसको हमें डिस्क्राइब करना है। DD का मतलब है ये डिस्क्रिप्शन है आपके DT का। HTML स्टैंड फॉर द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसे ही हमने नेक्स्ट DT लिया है HTTP, यानी सेकंड पॉइंट है HTTP, और इसका हमने DD क्या बनाया है या डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, इज स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो दीज आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज 2 पॉइंट HTML एंड HTTP। अब आपके रिजल्ट में यही शो होना चाहिए, एक डेफिनेशन लिस्ट जैसे आप डिक्शनरी में देखते हो। चलिए रिजल्ट देखते हैं। हियर वी आर। First one is HTML. This is stand for the hypertext markup language. Second one is HTTP. This is stand for the hypertext transfer protocol. I hope you all understand. Okay. So this is your description list or can say this is the session of list. अब हम बात करेंगे टेबल्स के बारे में। टेबल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि टेबल्स में जो रो एंड कॉलम होते हैं जिनसे मिलके एक सेल बनता है, उसकी हेल्प से हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर पाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, टेबल्स आर द मोस्ट पॉपुलर ऑन द वेब पेजेस बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल एंड हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग डेटा इन द अट्रैक्टिव वे इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। एग्जैक्टली इसी की हम लोग बात कर रहे थे। एक तो पहली बात अट्रैक्टिव लगता है, किसी डेटा को आप पैराग्राफ फॉर्मेट में रखो और उसी डेटा को आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। तो विच वन इज़ अट्रैक्टिव? ऑलवेज टेबल, क्योंकि टेबल में पड़ा हुआ डेटा या टेबल में यूज़ हुआ हुआ डेटा हमें देखने में भी आसान लगता है और समझने में भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती। होता है ना ऐसा? भाई आपको मैंने एक थ्योरी लिखा दी, बहुत सारी थ्योरी, मैंने जो ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ एक तरीके से ये भी एक टेबल का कंटेंट है। अब टेबल के कंटेंट को ना देखे मैं आपको बुक ऐसे दिखाता और बुक दिखा दिखा के मैं आपको पढ़ाता रहता, या कहता कि हाँ भैया पेज नंबर नेक्स्ट खोलो, पेज नंबर नेक्स्ट खोलो, तो आई थिंक वो पढ़ने में ना इंटरेस्टिंग होता और मे बी पॉसिबल आपको वो चीज़ें समझ में भी नहीं आती, आप उसे रट लेते। पर यहाँ पे आपकी टेबल का वो आपकी बुक का जो सारे पॉइंट्स हैं मैं उसे टेबल फॉर्मेट में या PPT फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूँ, तो आई थिंक ऐसा मुझे लगता है कि शायद ये इंटरेस्टिंग हो और मैं कोशिश करूँगा इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाने की। क्लियर?
अब शक्ल पे मत जाना, शक्ल मेरी इंटरेस्टिंग नहीं है। ओके, तो टेबल अट्रैक्टिव वे, HTML टेबल अलाउज यू टू अरेंज डेटा इनटू द रोज एंड कॉलम। दे आर कॉमनली यूज्ड टू डिस्प्ले टेबुलर डेटा लाइक द प्रोडक्ट लिस्टिंग, कस्टमर डिटेल, फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड सो ऑन। एग्जैक्टली, आप टेबल में कोई भी डेटा डिफाइन कर सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट है, आपकी स्कूल की रिपोर्ट है, आपका रिकॉर्ड है इन स्कूल में, या आप अपने घर वालों का रिकॉर्ड रखेंगे, या आधार कार्ड वाले आधार कार्ड का रिकॉर्ड रखेंगे, तो सारा का सारा डेटा टेबुलर फॉर्मेट में होता है। इसीलिए सारा का सारा वर्क हम टेबुलर फॉर्म में कहाँ करते हैं? एक्सेल पे। एक्सेल समझ में आता है ना? MS एक्सेल आपके MS ऑफिस का ही एक टूल है। जैसे वर्ड है, पावर पॉइंट है, वैसे एक एक्सेल भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो बात करें हम एडवांटेजेस ऑफ टेबल की, वैसे तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा बात करते हैं। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन द कंप्रिहेंसिव मैनर, बिल्कुल सर, सारा का सारा जो आपका एक लार्ज अमाउंट का डेटा होता है उसे हम बहुत शॉर्टली सामने दिखा सकते हैं। मेक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ डेटा, एग्जैक्टली, बहुत ईजी हो जाता है किसी भी डेटा को एनालाइज करना अगर वो टेबल फॉर्मेट में है। अगर हम पूरा का पूरा एक पैराग्राफ पढ़ें और एक छोटी सी एक 2 पेज की टेबल पढ़ें, तो 2 पेज की टेबल पढ़ना ज़्यादा आसान है एक पैराग्राफ पढ़ने से। क्लियर? उसमें समझ में भी थोड़ा फास्ट आएगा, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर इन कंपैरिजन टू पैराग्राफ। ओके, थर्ड वन, इंफॉर्मेशन इज ईजियर टू रीड, एग्जैक्टली, एक पैराग्राफ में किसी इन्फॉर्मेशन को गेट करना और एक टेबल से किसी इन्फॉर्मेशन को गेट करना, विच वन इज ईजियर? टेबल फॉर्मेट, एग्जैक्टली। अगर आपको पैराग्राफ फॉर्मेट ईजी लगता है देन कमेंट भी मुझे भी बताइएगा, आई थिंक मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए नई PPT बनाने में। ओके, सो हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे, दीज आर द कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, रो है, ये भी रोज़ हैं। ये सेल होता है। सेल का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं। ये हमारा मेन हेडिंग होता है, मेन टेबल का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसका हेडिंग होता है। यहाँ पे हमारे सब हेडिंग्स पढ़ते हैं जिससे रिलेट डेटा हम कॉलम्स में पूरा फिल करते हैं। ठीक है, और पूरी एक रो मिलके एक रिकॉर्ड बनाती है। ये कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट्स कराते हैं इस रिकॉर्ड के जो कॉलम्स होते हैं। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो बिल्कुल साहब, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। ओके, क्रिएशन ऑफ द टेबल। चलो, एक छोटा सा एक प्रोग्राम है जो टेबल क्रिएट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो फर्स्टली यू हैव टू क्रिएट द टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी, टेबल एलिमेंट की। ओके, टेबल एलिमेंट को बनाने के लिए यू कैन यूज़ द TR एलिमेंट। ठीक है, टू क्रिएट द रोज एंड क्रिएट कॉलम इनसाइड द यू विल यूज़ द TD। ठीक है, आपके रोज और कॉलम के लिए। यू कैन ऑल्सो डिफाइन द सेल्स एज द हेडर ऑफ द ग्रुप ऑफ द टेबल सेल्स यूजिंग द TH क्या करेगा? आपको वो डिसाइड करेगा हेडर क्या है। अब चलो, अब प्रोग्राम से जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ना थ्योरेटिकल आपको तब तक समझ में नहीं आती जब तक आप उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख ना लो या फिर प्रैक्टिकल खुद कर ना लो। ठीक है, एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं कि हाँ, कार कैसे चलाई जाती है। 4 गियर 5 गियर होते हैं। फर्स्ट गियर ही आगे, सेकंड गियर पीछे, थर्ड आगे, फोर्थ पीछे, फिफ्थ आगे, 6 पीछे। मैंने बता तो दिया, स्टीयरिंग घुमाना, ब्रेक लगाना और सारी चीज़ें आपको बता दी। बट कैन यू ड्राइव विदाउट प्रैक्टिस और विदाउट इंस्ट्रक्शन या विदाउट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप विदाउट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उसको दोबारा गाड़ी को चला पाओ। So here we go for the practical example of the HTML to create a table. Okay, आप बाबूजी बीच में आइए। स्टार्ट किया है मैंने HTML टैग से, जहाँ पे लैंग्वेज मैंने इंग्लिश ली है। आप चाहें तो कुछ डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही रहती है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, टाइटल दिया है क्रिएटिंग अ टेबल HTML। ओके, मैंने इसको टाइटल दिया है टेबल्स इन HTML। हेड को मैंने क्लोज कर दिया है। हाँ, बॉडी में मैंने क्या किया है, S2 का मतलब हेडिंग है ये आपका। H1 S2 S3 H4 मैंने लास्ट जो आपकी HTML की स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि 7 टाइप के हेडिंग्स आपके H1 से लेकर H7 तक होते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने किसको क्या किया है, टेबल स्टार्ट किया है। टेबल के अंदर मैंने क्या दिया है, TR। अब TR में क्या क्या बनेगा, मैंने अभी TR के लिए क्या बोला था, ये आपके कॉलम्स होते हैं। तो TR में आपका नंबर, नेम और एज, ये आपके 3 कॉलम्स बन गए। दीज आर द 3 कॉलम्स। ठीक है, ये आपका हो गया नंबर, ये हो गया आपका नेम और ये हो गई आपकी एज। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, अब TR में मैं रोज़ को फिल करूँगा, यानी कहीं ना कहीं ये हमारे रिकॉर्ड फिल कर रहे हैं।
टीडी में टीआर के अंदर हम लोग गए, टीआर यहाँ पे क्लोज किया। अब टीआर के अंदर टीडी, ये हमारी फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है, फर्स्ट कॉलम की। टीडी के फर्स्ट क्या है 1, टीडी सेकंड क्या है पीटर पार्कर एंड टीडी थर्ड क्या है 16, यानी फर्स्ट जो उसका सीरियल नंबर है उसका नाम पीटर पार्कर है और उसकी एज कितनी है 16 है। ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से मैं क्या करूँगा और भी रिकॉर्ड। सेकंड है क्लार्क केंट है 34 है, थर्ड हैरी पॉटर है 11 ईयर्स का है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। गौर करिएगा टीआर और टीडी में, टीआर आपका सेक्शन हर बार बनेगा किसी भी टेबल के एक स्पेसिफिक एरिया को डिफाइन करने के लिए। जैसे ये वाला पूरा एरिया आपने अगर गौर किया हो तो ये पूरा का पूरा एरिया टीआर से कवर अप है, टीआर से स्टार्ट हुआ है, टीआर से क्लोज हुआ है। टीएच मैंने कॉलम के लिए इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो ये हमारे कॉलम्स क्रिएट हो गए। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर हमें टेबल का क्रिएशन करना है तो अगर हमें रिकॉर्ड भी फिल करने हैं तो हमें किसके अंदर ही करने होंगे, टीआर के अंदर। अब ये टीडी क्या करता है, ये हमारे कॉलम की वैल्यू को पुट करता है, सेकंड टीडी फोर्थ टीडी। अब आप कॉलम्स बढ़ा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्लियर है? तो ये इस तरीके से पूरा प्रोग्राम राइट हो गया है। एट लास्ट मैंने टीआर को क्लोज़ किया है, टेबल को क्लोज़ किया है, बॉडी क्लोज और एट लास्ट HTML क्लोज। रन कराया मैंने इसे तो क्या मिला मुझे, ये मिला मुझे जो मैंने वहाँ पे फिट किए थे, यहाँ पे एज अ रिकॉर्ड मेरे सामने आ गए। फर्स्ट पीटर पार्कर 16, सेकंड क्लार्क केंट 34 एंड थर्ड हैरी पॉटर 11। तो ये सारे के सारे रन प्रोग्राम हैं। ठीक है, तो एज इट इज़ आप अगर प्रोग्राम को ट्राइड भी करोगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। देखो फर्स्ट रिकॉर्ड को मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये मैंने बनाया था ना फर्स्ट रिकॉर्ड कि फर्स्ट पीटर पार्कर 16, तो ये देखो फर्स्ट पीटर पार्कर 16, सेकंड क्लार्क केंट 34, सेकंड क्लार्क केंट 34। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट पेज, टेबल की प्रॉपर्टीज़। अब बेसिकली आपके सिलेबस के हिसाब से टेबल की 2 प्रॉपर्टीज़ दिखाई गई हैं, उन्हीं 2 प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पे आपको डिफाइन भी कर रहा हूँ। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज़ है बॉर्डर्स। नॉर्मली मैंने पीछे वाले स्लाइड में अगर देखा था कि उसमें बॉर्डर नहीं था, सिर्फ आपको नॉर्मली रिकॉर्ड दे रखा था। ये देखिए नहीं है ना बॉर्डर, किसी भी HTML कोड में या फिर जो रिज़ल्ट है उसमें बॉर्डर नहीं है। अब मैं आपको बॉर्डर लगाना सिखाऊंगा। प्रोग्राम बिल्कुल एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है नीचे वाले एरिया में। अगर आपको गौर करेंगे तो नीचे वाले एरिया में कोई चेंज नहीं है, सेम बन रहा है। टेबल क्रिएशन है, टेबल का रिकॉर्ड है, टेबल के रोज एंड कॉलम एज इट इज़। सो वी हैव टू चेंज इन द head section because we have to change the style of the table. So here we go. Firstly we have to go to the head section. ठीक है, नीचे के प्रोग्राम बिल्कुल एज इट इज़ है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। यू कैन पुट प्रोग्राम एज इट इज़, यू हैव टू चेंज ओनली द हेड सेक्शन। तो हेड सेक्शन में फर्स्टली वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डन, टेबल TH TD। ठीक है, टेबल के अंदर ही TH होता है, TH के अंदर ही TD होता है। TH हमें कॉलम्स के बारे में बताता है कि कॉलम्स के हेडिंग क्या होंगे, और जो TD होता है वो उन कॉलम्स की वैल्यू को पुट कराता है। क्लियर? तो अब क्या है, TD में हमें ये है हमारा सिंटेक्स, इसे हम बोलते हैं पूरा सिंटेक्स। बॉर्डर में हमें 1 पिक्सल लेना है, सॉलिड ब्लैक लाइन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लाइन। अब यहाँ पे क्या होगा, TH TD के अंदर ही पैडिंग की है, क्या किया है 10 पिक्सल्स में। ठीक है, 10 पिक्सल मतलब ये जो आपकी आउटर लाइन है। यहाँ तक तो मैंने बॉर्डर दिया है हर एक वैल्यू को। अगर आप गौर करेंगे एज इट इज़, मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट वाला है वो इन वाले नंबर्स के लिए है, नंबर नेम एज सबके लिए उसने कॉलम बनाया ना। अगर आप वो बॉर्डर बनाया ना, गौर करिए, फर्स्ट पीटर पार्कर 16 सबके लिए बॉर्डर है, सेकेंड कार्ड जो लास्ट 10 पिक्सल दे रखा है ना वो इसके लिए है, वो ओवरऑल बॉर्डर है। क्लियर? ओके, फिर उसके बाद सेम है, स्टाइल को क्लोज कर दिया है, सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। उसके बाद एज इट इज़ सारा प्रोग्राम लिखा है और प्रोग्राम को रन करा दिया है। तो आप एज इट इज़ प्रोग्राम को भी रन कराओगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बेसिकली 3 है इसमें, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। ठीक है, तो फिर से हम नीचे वाले प्रोग्राम को नहीं देखते हैं क्योंकि नीचे वाला प्रोग्राम फिर से एज इट इज़ है, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। ठीक है, ऊपर वाले प्रोग्राम में थोड़ी बात कर लेते हैं हम, जो हमारा बॉडी सेक्शन है। अब हमें क्या करना है, अब देखो हमने आउटर वाले लेयर को हटा दिया है। अगर आप देखेंगे तो बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है, एक तरीके से उसने कोलैप्स एक कह सकते हैं वैल्यू है, एक एट्रीब्यूट है, यूज़ किया जा रहा है। तो कोलैप्स का मतलब बिगाड़ मत देना। ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स मतलब कोलैप्स
बॉर्डर को फिर से मैंने वही थिक पेन किया है। यहाँ से हमने अब इस बार क्या किया है, टेक्स्ट अलाइन, मेन आपका ये लाइन है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, ठीक है। तो अलाइनमेंट जो हुआ है वो लेफ़्ट साइड में हुआ है, आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो लेफ़्ट साइड में। अगर आप गौर करेंगे तो आपको जो ये नेम है ना, ये वाला नेम, वो आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई देगा। अब नंबर और एज में इतना स्पेस नहीं है, इसलिए आपको बहुत गौर से शो नहीं हो रहा होगा, पर नेम वाले कॉलम में आपको देखेंगे ना तो बहुत स्पेस है। दैट्स वाई उसने स्पेसिफाई किया है कि हाँ वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड से लिखा है। यहीं मैं सेंटर कर देता तो यही नेम बीच में आ जाता, राइट कर देता तो यही नेम बिल्कुल राइट साइड में चला जाता। तो दीज आर द अलाइनमेंट्स विच इज़ यूज्ड, ठीक है। आई थिंक देयर इज़ नो डाउट, बट इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी। ये देखो लास्ट लाइन में उसने कुछ किया भी है, एक लिंक शेयर किया है। देखो जैसे ये ना नोट, सी द ट्यूटोरियल ऑन CSS टेबल्स टू लर्न मोर अबाउट द कोलैप्सिंग टेबल बॉर्डर, ठीक है। तो कोलैप्सिंग टेबल बॉर्डर पे उसने एक आपको नोट भी दिया है, एक लिंक दिया है, ये HREF ये आपका लिंक ही है, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक ट्यूटोरियल ओपन हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो ऐसा उसने यूज़ किया है, यानी बनाया है मैं एक प्रोग्राम। So this is your advanced feature of the HTML। आई होप आप सभी को एडवांस फीचर समझ में आए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं यूज़ की है। मे बी पॉसिबल मेरी अगर कोई लैंग्वेज आपको प्रॉब्लम कर रही हो, आपको प्रॉपर इंग्लिश, प्रॉपर हिंदी, प्रॉपर जिस भी लैंग्वेज में नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज़ टेक्स्ट मी। किसी भी तरीके का ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बात सुने, उसे समझें भी। सो दिस इज़ योर मल्टीपल कॉलम्स एग्जाम्पल। ओ मैंने आपको एक्स्ट्रा भी दे रखा है। चलिए मल्टीपल कॉलम्स की बात क्या है कि अगर आप गौर करेंगे नीचे का प्रोग्राम बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मल्टीपल कॉलम्स। एक कॉलम है फ़ोन के अंदर उसके जॉन कार्टर के 2 नंबर थे। आजकल तो सभी डुअल सिम चला रहे हैं, तो सबके पास 2 नंबर हो सकते हैं। तो उन 2 नंबर को एक सिंगल कॉलम में मुझे शो करना था, तो मैंने कहाँ चेंज किया, कॉलम्स में चेंज किया। आप देखिए यहाँ पे फिर से मैंने सारी चीज़ें वही की हैं। हेड, टाइटल मैंने लिखा है, स्टाइल के अंदर टेबल, विड्थ 300 पिक्सल्स विड्थ दे दी है मैंने, चौड़ाई उसकी। बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी चल रही है, बॉर्डर दे दिया है, पैडिंग दे दी है, स्टाइल क्लोज कर दिया है। अब क्या है, S2 हेडिंग दिया है, स्पैनिंग कॉलम्स, ठीक है। ये देखो आपका स्टार्टिंग का है स्पैनिंग कॉलम्स, ऊपर लिखा हुआ है सबसे स्पैनिंग कॉलम्स। टेबल के अंदर गए, TR के अंदर हमने क्या किया है, नेम दिया है, ठीक है। नेम के अंदर क्या किया है हमने, कोलस्पॉन सेकंड, ठीक, एंड फ़ोन TH, जो हमने दूसरा फ़ोन वाला बनाया है उसके अंदर मैंने क्या किया है, 2 कॉलम दिए हैं। तो ये है आपका कोड मेन। सबको मैं दिखा देता हूँ गौर से। ये दिस इज़ योर मेन कोड, कॉल स्पैन, क्लियर है। कॉल स्पैन 2, और यहाँ पे मैं 3 कर देता तो वो 3 कॉलम में डिवाइड हो जाता। कॉल स्पैन 4 कर देता तो आपके 4 कॉलम्स बन जाते। तो यू कैन डिवाइड योर रो एज वेल एज कॉलम ऑल्सो। तो नेक्स्ट में एग्जाम्पल आपको रो का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो फ़ोन नंबर को देखिए उसने किया है ना, ये आपकी अब रो है, ये आपके ये आपकी रो हैं, 2 रोज़ हैं। उससे पहले नीचे जो चल रहे थे वो कॉलम्स थे। तो अब की बार मुझे क्या करना है, रोज़ वाले ऑप्शन में जाना है। तो ये अभी गो द रो ऑप्शन, ये फ़ोन दिखाई दे रहा है, रो स्पैन। इससे पहले हमने क्या किया था, कॉल स्पैन किया था, वो कॉलम इस अलग हो गए थे, यहाँ पे रो स्पैन हो गए। अब यहाँ पे वैल्यू आप चाहे जितनी डालो, 2 3 4 5 6, जितनी आपको रो बनानी है, जितने आपको कॉलम्स बनाने हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स। और इन एग्जाम्पल्स में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इन एग्जाम्पल्स में कुछ समझ में ना आया हो, जैसे ये पीछे वाला एग्जाम्पल था, सेम एग्जाम्पल है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे मैंने कॉल स्पैन किया है, यानी कॉलम को डिवाइड किया है, और नेक्स्ट प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, रो को स्पैन किया है, रो को डिवाइड किया है। ओके, तो दीज आर द टेबल प्रॉपर्टीज़। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप यू आर डूइंग बेटर एट योर प्लेसेस, बट यू हैव टू नीड do much more better, okay, because online classes are sufficient or not sufficient, it depend totally on you. You all students are the strength of the teacher. That's why just watch the video very carefully, do your homeworks, do complete your copies, don't give a single issue to your parents as well as to your teacher, because if you left the classes, if you don't serious about your study, you will be back soon, okay. You will realize after starting the classes what would you left in the classes. So I hope you are doing good.
तो इसी के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त अनिल कुमार सिंह, योर कंप्यूटर टीचर, फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके आएगा। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जिस टाइम पे आप ये वीडियो देखेंगे। सत श्री अकाल, सब खैर, मिलते हैं जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच।